So number 2, regulation by JGA. That is, JGA means juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus. ये क्या है juxtaglomerular apparatus? It is a microscopic structure. Microscopic structure located situated near the glomerulus. देखो, juxta मतलब क्या होता है? Juxta means near होता है, तो इसलिए near glomerulus. Juxtaglomerulus means near glomerulus. ठीक है, juxtaglomerulus apparatus. So here is the, see, suppose this one is the Bowman's capsule. Bowman's capsule है, इसमें ये efferent arteriole क्या करेगा? It carries the blood, it is supplying the blood. फिर यहाँ पर जाकर के ये सब ऐसे एकदम पूरा एक्सटेंसिव नेटवर्क की तरह एकदम बन जाएगा. They will form an extensive network. पूरा एकदम जैसे तैसे बनने का मन होगा बनेगा एक्सटेंसिव नेटवर्क. फिर यहाँ पर फिल्ट्रेशन होकर के ये बाहर निकलेगा. क्या बन के बाहर निकलेगा? इफरेंट आर्टेरियल बन के बाहर ये निकलेगा. तो यहाँ पर near the glomerulus, here you can see some cells lying here. These cells that lie here, these cells are known as juxtaglomerular cells, and यही सब cells मिल करके फिर क्या बनता है? JGA, juxtaglomerular apparatus बनता है. एक्चुअली इसमें juxtaglomerular apparatus में सिर्फ ये cells ही नहीं होता है, इसमें 3 components होता है. Okay, but those are not required here. 3 components are there. Macula densa, फिर जाकर के juxtaglomerular cells, and one more type of cells are there. So 3 components होगा. That is not necessary, not required. हम लोग को जानना है ये juxtaglomerular apparatus कहाँ पे located है? Near this glomerulus it is located. So what it will do, इसका आप mechanism देखते हैं. Whenever our blood pressure falls, then this juxtaglomerular cells juxtaglomerular apparatus, okay, they will activate the RAAS system of the body. What is RAAS system? Renin, angiotensin, aldosterone सिस्टम, इसको एक्टिवेट करेगा. और क्या क्या प्रोड्यूस होगा? रेनिन प्रोड्यूस होगा, एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होगा, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा. दैट इज नोन एज द RAAS. So these enzymes will act on the blood vessels and the kidneys. किडनीज पे एक्ट करेगा ये सब, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा ये सब, और फिर दे विल इंक्रीज द BP ऑफ द पर्सन. यही चीज होता है मैकेनिज्म में. मतलब कि नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट दिस मैकेनिज्म. ये इसका समरी है. juxtaglomerular apparatus क्या करता है?
juxta whenever there is hypotension means blood pressure decrease हो गया है, so this is hypotension. then juxtaglomerular apparatus एक्टिव हो जाता है और फिर ये क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करता है. ये जेजीए मतलब कि ये सब एंजाइम्स रिलीज करता है. तो ये सब एंजाइम्स जो है दे विल एक्ट ऑन द किडनीज एंड द ब्लड वेसल एंड सो after acting on the kidneys and the blood vessels the blood pressure of the person will increase. तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखने का एक मैकेनिज्म है. ठीक है, ये जो है RAAS, it is the mechanism of maintaining the blood pressure of a person. Now in details let us see. तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि when the blood pressure decreases, blood pressure जब डिक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, when the blood pressure decreases then renin okay, when the blood pressure decreases then juxtaglomerular cells juxtaglomerular cell of the juxtaglomerular apparatus apparatus में जो juxtaglomerular cell है ये सब क्या करता है, ये सब रेनिन प्रोड्यूस करता है और ये रेनिन फिर क्या करता है, रेनिन जो होता है ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और फिर यहाँ पे एक होता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. वो एंजाइम जो है फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 इसी में मतलब कि इसी का बहुत सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू से ही बहुत कुछ अभी होने वाला है. So angiotensin 2 क्या क्या करता है, see this one angiotensin 2, this increases glomerular blood flow. प्रेशर इंक्रीज कराएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाएगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, ग्लोमेरुलस में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए, ग्लोमेरुलस में जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई होने लगेगा. ग्लोमेरुलस में अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो ज्यादा करके ब्लड वहां पर पहुंचेगा, है ना. सो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ. अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा, इंक्रीजेस GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, पढ़ चुके हैं हम लोग. अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा ग्लोमेरुलस में तो ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा कि नहीं. फिल्ट्रेट मतलब वही जिससे यूरिन बनेगा. फिल्ट्रेट मतलब वही जो इसमें पास हो जाता है, PCT में पास होकर के चले जाता है फिल्टर होकर के, तो जिससे यूरिन बनेगा उसी को फिल्ट्रेट करते हैं. सो ये फिल्ट्रेट इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये हो सकता है एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा करके सप्लाई देगा, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो फिर इट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 ये क्या करता है, ये ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज करता है, बाय इंक्रीजिंग
बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो जीएफआर ज्यादा होगा। और ये बीपी ज्यादा कैसे होगा फिर? बिकॉज यू सी एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, ये एक पावरफुल, बहुत ही पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो, द टर्म वैसो, वैसो इज अप्लाइड टू डिनोट द ब्लड वेसल्स। और कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। सो इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। शुरू से देखो, यहां से ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, दिस इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, सो इट विल कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगा तो बीपी इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो ज्यादा मिलेगा। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा मिलेगा तो फिल्ट्रेशन, वो जो फिल्टर है, फिल्टर ज्यादा होगा, फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा। Okay, so it will increase the filtrate filtration rate. Next one you see, ये दूसरा तरह से भी एक्ट कर सकता है, दूसरा तरह से भी काम कर सकता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है, दिस कैन एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। एंजियोटेंसिन 2 जो है, दिस कैन एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस। एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डोस्टिरोन प्रोड्यूस करता है। एल्डोस्टिरोन प्रोड्यूस करेगा तो ये एल्डोस्टिरोन जो है, ये क्या करता है? ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट रीजन्स में सोडियम आयंस एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाता है। इंक्रीजेस द सोडियम आयंस एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी सॉरी डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम आयन और वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा। ये ज्यादा एब्जॉर्ब कराने से क्या होता है? ज्यादा एब्जॉर्ब कराने से बीपी इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है? एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर, सो इट इंक्रीजेस द बीपी, है ना। ये ब्लड इधर देखो, एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन, अल्टीमेट फंक्शन एंजियोटेंसिन 2 का क्या है? टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बीपी इंक्रीज कराना, यही एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन है। कैसे करके इंक्रीज कराता है? अपने से डायरेक्टली इंक्रीज कर सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी इंक्रीज कर सकता है। डायरेक्टली, डायरेक्टली इंक्रीज कर सकता है या फिर इनडायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू से भी इंक्रीज करवा सकता है। तो सी, एक्सप्लेन एक बार फिर से देखो। जक्स्टा whenever the BP decreases the blood pressure, BP अगर डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने से जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus का जो सेल है एक्टिवेट हो जाएगा, दे विल प्रोड्यूस रेनिन एंड दिस रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन, मींस ये इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 1 is again get converted into angiotensin 2 by the help of ACE. ACE means angiotensin converting enzyme. फिर ये angiotensin 2 जो है, ये दो तरह से काम कर सकता है। पहला, angiotensin 2 जो है, ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, तो angiotensin 2 जो है, दिस इज ए पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मींस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है। अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए साइज, देन क्या होगा? बीपी इंक्रीज। एंड एंजियोटेंसिन 2 जो है, दिस कैन आल्सो एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे भी एक्ट कर सकता है, करता है।
तो एड्रिनल ग्लैंड पे जब एक्ट करेगा देन इट विल प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। सो दिस एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कम्युनिकेटेड ट्यूबुल के रीजन्स में सोडियम आयंस और वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा। तो ये एब्जॉर्ब करवाने से क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है। सो द अल्टीमेट फंक्शन वी कैन सी हियर ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज टू इंक्रीज द बीपी ऑफ द पर्सन। बीपी इंक्रीज करवाना है। उस तरफ से होकर आओ तब भी बीपी इंक्रीज होता है, इस तरफ से जाओ तब भी बीपी इंक्रीज होता है। फिर बीपी इंक्रीज होगा अगर, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड सप्लाई होता है वो इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होने से फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, बढ़ेगा। सो GFR, glomerular filtration rate will increase. This is RAAS mechanism. ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone mechanism. Understood? This is the RAAS mechanism. In this way, RAAS मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, देखो बीपी डिक्रीज जब हुआ था, बीपी डिक्रीज होने के कारण से ये सब इतना सारा चीज हुआ था। बीपी डिक्रीज होने के कारण से JGA पहले रेनिन सेक्रेट किया, फिर जाकर के ये सब इतना सारा हुआ और अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज करा दिए। तो वी कैन से दैट RAAS जो है मैकेनिज्म जो है ना, ये क्या है। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग, मतलब ये जानना जरूरी है। ये ना जान करके ये मैकेनिज्म समझ करके कोई फायदा नहीं है। मतलब ये क्या है RAAS, व्हाट इज इट, व्हाट इज द एम ऑफ दिस RAAS मैकेनिज्म। इसका एम क्या है, मीन्स डिक्रीज बीपी लो जो होता है, बीपी लो को क्या करवाना है, बीपी को हाई करवाना है। that is the purpose of RAS mechanism. Here is low BP decrease, so इसको high BP बनाए, यहाँ पे you can see BP increases. This is the ultimate purpose, ultimate goal of the RAAS mechanism. Okay.